Hello students, here I am going to teach you a topic in geography. The name of the topic is Inside Our Earth. I am written here, Inside Our Earth. Here, see, first, you all know that the Earth is the third nearest planet to the Sun, number one. Second, Earth is such a planet where the life exists. No one other planet can life exist there. So the Earth is the only planet where the life exists. अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहां पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है और कैसा मैंने बोला थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन नंबर 1। दूसरी बात अर्थ जो है ये अर्थ क्रस्ट जो हम लोग बात करते हैं यहां पे आप देख रहे होंगे अर्थ का ये डायग्राम अर्थ कैसा है इट इज स्फेरिकल इन शेप the outer layer of the earth is termed as earth crust। आप यहां पे देख रहे हैं मैंने क्या बनाया है क्रस्ट जो सबसे अर्थ के ऊपरी जो लेयर है ऊपरी जो सतह है पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी जो सतह है उसे हम क्या बोलते हैं क्रस्ट बोलते हैं अर्थ क्रस्ट बोलते हैं दिस वन इज कॉल्ड अर्थ क्रस्ट। सो inside the earth that is the deepest layer of the earth that is called interior core this one is called interior core see here this one is the interior core and this interior core this all area is termed as interior core and here this one is outer core कोर का सबसे बाहर का ये जो सतह है इसे हम लोग क्या बोलते हैं आउटर कोर। फिर इसके बाद कौन सा लेयर आता है मेंटल का लेयर कोर मेंटल बोलते हैं। फिर उसके बाद का जो लेयर है वो आपकी बाहर के लेयर है वो बाहर के लेयर को क्या बोलते हैं हम लोग अर्थ क्रस्ट। सो हाउ वी डिफाइन अर्थ क्रस्ट द टॉपमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ the upper surface of the earth or you say the thinnest layer of the earth and how much kilometer that is 35 kilometer जो टॉपमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट है उस कितनी किलोमीटर तक वो गा रहा है 35 किलोमीटर। फिर जब हम लोग बात करते हैं अर्थ क्रस्ट का तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ अर्थ क्रस्ट वन इज द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड सेकेंड वन इज ओशनिक क्रस्ट। किसे कहेंगे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज such a crust where the basically land surface is be there so where there is a land surface that the surface is said to be continental crust। Whenever we go deep inside the ocean and then the layer of the surface of the earth then it's termed as oceanic crust। So there are two type of earth crust one is the continental crust second one is oceanic crust। continental crust किसे बोले where the surface of the land that all the surface of the land is termed as what continental crust। वहीं पे दूसरी ओर जो ओशन गहराई यदि हम लोग समुद्र के नीचे गहराई को यदि हम लोग अर्थ सरफेस देखेंगे तो वहां के सी बेड्स को नीचे वाले लेयर्स को क्या कहेंगे ओशनिक क्रस्ट कहेंगे। पहली बात इस अर्थ क्रस्ट पे जो मिनरल्स हैं नहीं बेसिकली दो तरह के मिनरल्स होते हैं नंबर वन इज व्हाट सिलिका और दूसरा क्या है एल्यूमिना। तो वन इज द सिलिका सेकेंड वन इज व्हाट एल्यूमिना। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द मिनरल्स व्हिच इज बेसिकली प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस दैट इज सिलिका एंड एल्यूमिना। नाउ हियर द मिनरल्स दैट इज अ व्हाट इट इज अ सच अ inorganic compounds which are basically found in the deeper layer inside of the earth। Here the innermost layer is made up of nickel and iron so that's why we called as knife NIFE knife Ni for nickel and Fe for ferrous। Here this one is the rock and the rock formation you all know that whenever the hot molten magma came above the surface of the earth at the time of volcanic eruption जब कभी volcanic eruptions होती है उस वक्त क्या हो रहा होता है नीचे पृथ्वी का जो हॉट मोल्टेन मैग्मा है ना वो पृथ्वी के सतह पे चला आया और जैसे पृथ्वी के सतह पे आया तो क्या होगा फिर लास्ट में वो सॉलिडिफाई होगी सॉलिडिफाई होने के बाद वो क्या बनेगा रॉक्स बनेगा that's a rock is termed as igneous rock which is derived from Latin word igneous means fire। it means that whenever the hot molten magma
came above the surface of the earth and it solidify, then it forms what? Igneous rock. Number one, igneous rock is also termed as primary rock. Now, further, this igneous rock is classified into two parts. One is the intrusive rock. I am saying here intrusive rock. What the meaning of intrusive rock? In means inside. So whenever the hot molten magma solidify beneath the earth or under the surface of the earth, then it is termed as intrusive rock. Number one. Second one, extrusive rock. X means what? Outside. So whenever the hot molten magma solidify above the surface of the earth, then it is termed as extrusive rock. This is called extrusive rock. Means what? Whenever the hot molten magma solidify on the surface of the earth, then it is called extrusive rock. And whenever the hot molten magma solidify beneath the earth or inside the earth, you say, then it is termed as intrusive rock. So here there are two types of igneous rock. Now, second one is what? Sedimentary rock. Sedimentary rock. Sediment means what? Whenever the molten magma just lower inside the earth's surface, or you say whenever the igneous rock settle at the bottom of the earth, then it is said to be what? Sedimentary rock. Under a high temperature and pressure it form. बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर मिलने के बाद ये इग्नियस रॉक्स क्या चीज में फिर कन्वर्ट हो जाते हैं? वो सेडिमेंट्स में होते हैं। सेडिमेंट्स का मतलब ही होता है क्या? नीचे बैठना। कब? आप देख रहे होगे जब बहुत तेजी से हवाएं बहती है या बहुत तेज लहर उठती है समुद्र में, तो चट्टान क्या होगा? टूटेगा। और जब टूटेंगे तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटेंगे, और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जिसे हम क्या बोलते हैं? फ्रैगमेंट्स, स्मॉल फ्रैगमेंट्स। फिर वो स्मॉल फ्रैगमेंट्स आपस में जाकर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, गैदर्ड हो जाएंगे, फाइन पोर्स उसमें हो जाएगा, और वो रॉक्स क्या कहलाएगा? सेडिमेंट्स। क्यों सेडिमेंट्स कहलाया? क्योंकि वो पानी की धार से, हवा की लहरों से वो क्या हुआ? वो आपस में जाकर मिलते चले गए, जुड़ते चले गए, और जुड़कर क्या बन गया? एक रॉक्स बना। और रॉक्स जो बना वो नीचे बैठा, उस बैठे हुए रॉक्स को क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्स बोलते हैं, which lies deeper inside the earth, that is called sedimentary rock. फिर इसके बाद metamorphic rock. फर्दर यही सेडिमेंट्री रॉक्स अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, साथ साथ इग्नियस रॉक भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर एंड प्रेशर जब मिले तो वो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स फाइनली जाकर क्या चीज में बन गए? मेटामॉर्फिक रॉक में। अभी हम लोग बात करेंगे रॉक साइकिल की, लेकिन उससे पहले हम लोग ये जान ले कि आखिर रॉक्स है क्या। तो मैंने बताया कि रॉक इज अ वर्ड such a minerals because they also contain minerals, such a inorganic materials. Suppose I am giving you example, suppose ferrous, silica, all others metal is also extracted from there, that is called ores. Ores is the impurities which contained in a metal. So we all things we get from where? Rocks. So this one is the rock, and rock are basically three types. One is the igneous rock, that is also called primary rock. Second one is sedimentary rock. Third one is what? Metamorphic rock. Now here last one is the topic is here, that is rock cycle. What do you mean by rock cycle? So the process of transformation of rock, the process of transformation of rocks from one to another. So whenever the rocks transformed into one rock to the another rock, this very process is termed as what? Rock cycle. एक रॉक से दूसरे रॉक में बदलना। कैसे? By the action of various things. What the various things? The temperature, the pressure, heat, cool, these all are the things that's applied on a rocks continuously, and this one changes into a different forms of rocks. Let's see, here is a trick that how you learn this rock cycle. मैंने यहाँ पे आपको ट्रिक्स बता रखा है कि कैसे आप रॉक साइकिल को याद रखेंगे। बहुत आसान है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझने की कोशिश करेंगे।
ऊपर में मैंने लिखा है एम ए से याद रखेंगे मैग्मा, और नहीं याद रहे तो एम ए का मतलब मां। दूसरा मैंने रखा है नीचे में, ठीक उसके नीचे आइए, एस मैंने लिखा है, एस से याद रखेंगे सेडिमेंट्स, नहीं याद रहता है, एस से याद रखिए सन, मां का बेटा जिसे हम लोग सन बोलते हैं। फिर उसके लेफ्ट हैंड साइड में फिर मां है, यानी एम से मैंने मां को रिप्रेजेंट कर रखा है, मां एम। एम फॉर आप याद रखेंगे कौन सा, मेटामॉर्फिक। फिर इसके बाद ठीक राइट साइड में क्या है, इग्नियस, आई फॉर इंडिया, आई से हम लोग क्या समझ रहे, इंडिया। अब जरा सा देखो मैंने क्या ट्रिक्स लगा रखा, एम ए मां जो है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्मा। मैग्मा क्या है, हॉट मोल्टेन मैग्मा, जब धरती के ऊपर, पृथ्वी के सतह के ऊपर आया तो क्या बन गया, इग्नियस रॉक। आफ्टर सॉलिडिफाई होने के बाद अब ये इग्नियस रॉक जो ये बना, आई फॉर मैंने यहां पे लिखा है क्या, इग्नियस रॉक। ये इग्नियस रॉक फिर फर्दर क्या करते हैं, ये टूटते हैं बाय द एक्शन ऑफ हीट, नहीं, बाय द एक्शन ऑफ वाटर, फ्लोइंग वाटर, ब्लोइंग विंड। तो ये इग्नियस रॉक क्या होगा, टूटेगा। किसमें टूटेगा, दैट इज कॉल्ड सेडिमेंट्स। एस फॉर मैंने क्या रखा है, सेडिमेंट्स, जिसे आप सन से मैंने बोला याद रखने के लिए। फिर सेडिमेंट वापस किस में जाएगा, फिर ये बनेगा आपका मेटामॉर्फिक में। मेटामॉर्फिक रॉक से, क्यों मेटामॉर्फिक रॉक अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, फिर से वापस ये हॉट मोल्टेन मैग्मा जो है इस मेटामॉर्फिक रॉक को फिर वापस क्या बनाएगा, यानी एम ए, मैंने एम ए से क्या रखा, मैग्मा। ये साइकिल कंटिन्यूअस चलेगा। या इग्नियस रॉक डायरेक्टली आपका मेटामॉर्फिक रॉक में जा सकता है, या ये सेडिमेंट्स वापस मेटामॉर्फिक रॉक में जा सकता है, या फिर मेटामॉर्फिक वापस सेडिमेंट्स में टूट सकते हैं। तो ये जो साइकिल है वो कंटिन्यूअस तरीके से चलते रहेंगे। इस साइकिल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रॉक साइकिल बोलते हैं। तो रॉक साइकिल को मैं फिर से बोल दूं, रॉक साइकिल क्या है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक, यानी वह प्रोसेस, वह विधि जिससे एक रॉक दूसरे रॉक में, यहां पे देखिए आप, यहां पे मैग्मा से क्या बना, इग्नियस, इग्नियस से क्या बना, सेडिमेंट, सेडिमेंट से क्या बना, मेटामॉर्फिक, अगेन फिर मेटामॉर्फिक से क्या बना, मैग्मा। ये जो साइकिल है ये कंटिन्यूअस साइकिल चलती रहती है, ठीक है। तो इस कंटिन्यूअस साइकिल को हम लोग क्या बोलेंगे, रॉक साइकिल बोलेंगे। दिस वन इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज रॉक साइकिल। So these all are the things in a chapter of Inside Our Earth, students. So go through the textbook, go through line by line. I hope these all things is written in your book also. So these all things just you have to keep in mind. Thank you for watching me.